ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں۔ پہاڑی مقامات پر ندی نالوں میں طغیانی، شارع قراقرم اور بلوچستان کی متعدد سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئیں۔ گوادر اور پرسی میں بارش نے تباہی مچا دی، پانی گھروں میں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ ناران، کاغان اور گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں برف باری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ بارش کے دوران حادثات میں مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ لوئر چترال میں 3 دن اور بلوچستان کے متاثرہ اضلاع میں 2 دن کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ مسلسل بارشوں سے دریائے سوات اور دریائے کابل میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں طوفانی بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، چترال میں بجلی اور فون سروس معطل، تعلیمی ادارے 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ قبائلی اضلاع میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ٹانگ میں ملزئی کے علاقے میں برساتی نالے میں پک اپ ڈاٹسن بہہ گئی۔ برساتی پانی کی زد میں آنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لوئر دیر کی وادی لکمان بانڈا میں گھر کی چھت پر پہاڑی تودا گرنے سے 2 خواتین اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مانسیرہ میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کاغان اور ناران میں ہلکی برف باری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث مکانات کی دیواریں گر گئیں۔ شارع قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی۔ مومن میں گزشتہ 3 روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سیلابی پانی نشیبی علاقوں میں داخل، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف علاقوں میں کچے مکانات کو نقصان۔ اپر مومن میں گھر کی دیوار گرنے سے 3 بچے زخمی ہو گئے۔ شدید بارشوں کے پیش نظر لوئر چترال اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 3 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ادھر پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ اکاڑا میں کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بالائی علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث دریائے کابل میں نوشہرہ اور چارسدہ میں سر دریاب کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کھیتوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق چارسدہ میں سر دریاب کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ 96,000 کیوسک ہے۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ کی گنجائش 4 لاکھ کیوسک ہے۔ دریائے سوات میں منڈا ہیڈ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 93,000 کیوسک ہے۔ منڈا ہیڈ کے مقام پر پانی کے بہاؤ کی گنجائش 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہے۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق دریائے سوات میں اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریاؤں کے کنارے اور نشیبی علاقوں کے مکینوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سوات میں اپریل کے مہینے میں بھی وادی اتروڑ اور پلوگا سمیت بالائی پہاڑوں پر برف باری ہوئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پیر کو کالام کے نواحی علاقوں وادی اتروڑ، گبرال، پلوگا اور مہوڈن جیل میں پہاڑوں پر برف باری ہوئی، جس سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ موسم بتانے والوں کے مطابق بارش اور پہاڑوں پر برف باری اور بارش کا یہ سلسلہ 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید تیز بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شہر قائد میں کل کئی علاقوں میں مسلسل ابر رحمت برسا، مگر آج مزید بارش کا امکان نہیں ہے۔ چیف میٹیورولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ 17 اپریل کو داخل ہوگا، جس کے باعث کراچی میں 18 اور 19 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغرب میں بارش برسانے والا سسٹم مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 29 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ چیف میٹیورولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز بارش توقع کے مطابق ہوئی ہے اور مناسب برسات کے باعث رواں سال زیادہ گرمی کا امکان نہیں ہے۔ سردار سرفراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ مئی اور جون میں گرمی ہوگی مگر زیادہ نہیں ہوگی۔ ٹنڈو الیار میں صبح سے ہی آسمان پر کالے بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ آج بھی شہر میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑکوں پر موجود ہے۔ ٹنڈو الیار کے موسم کی مزید کیا صورتحال ہے، بات کریں گے نمائندہ نیوز 1 طارق حمید عباسی سے۔ طارق بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے بارش کے بعد؟
अजनबी बात की जाए तो मौसम की टंडोला और उसके गिरदो नवा के इलाकों में गुज़िश्ता रोज जो है कि कहीं हल्की और कहीं तेज़ तूफानी तेज बरसात का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है कि टंडोला का मौसम जो है कि सुहाना हो चुका था। जो आज सुबह से जो है कि आसमानों पे काले बादलों का हमें रात दिखाई देता है। जब हमारी महकमा मौसम से बात हुई, उनका यही कहना था कि टंडोला का दर्जा आ रहा था कम से कम जो है कि 19 रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और नमी में तनासुब 70% है। इस वक्त टंडोला में जो हवा है वो 6 मिलीमीटर के हिसाब से यहाँ पे हवा चल रही है। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी तेज बरसात की वजह से टंडोला में तैयार गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो टंडोला में बरसात का जो पानी था सड़कों पर जमा हुआ था वो भी ताल अभी तक ना निकाला गया है, जिसकी वजह से लोग जो है कि शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर जिला इंतजामिया की जानिब से बारिश से निपटने के लिए कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए। आपका बहुत शुक्रिया। उधर मियांवाली में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जहां बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ है, वहीं किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिससे नुकसान का अंदेशा है। इसी पर हम बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार भुच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फार, बताइएगा किसान क्यों परेशान हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली में। अगर मौसम की बात की जाए तो 2 दिन से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि मज़ीद 2 दिन बारिश रहेगी। अगर फसलों की बात की जाए तो जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। गंदम का जो कटाई का सिलसिला है वो भी जारी है। अगर कनोले की बात की जाए तो कनोला की जो कटाई है वो भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद है, उससे बात करते हैं। बताइए जी, बारिश का सिलसिला जारी है, गंदम की फसल को नुकसान हो सकता है? जी काफ़ी नुकसान है गंदम की फसल को, क्योंकि गंदम की मुकम्मल जो है ना वो तैयार थी और कटाई का सिलसिला 2-4 दिन में शुरू होने वाला था। कई जगह पे तो इसकी कटाई शुरू हो चुकी थी। तो अभी बारिश ने जो है ना काफ़ी जो है ना इसका काम रोक दिया है। और अल्लाह का जो है ना वो करम करे अल्लाह, और जो है ना अगर ये बारिश रुक जाए 2-4 दिन में तो इंशाल्लाह हम 10-15 दिन में जो है ना फसल सारी समेट सकते हैं। तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना करम करे हम पर, और ताकि ये फसल जो है ना साल की फसल है किसान की वो घर आ जाए। और कनोला जो है ना वो भी, उसका भी काफ़ी नुकसान है। कनोला भी जो है ना वो तैयार था, कटाई हो चुकी थी, और जो जब फसल काटी जा चुकी होती है और वो तैयार करके बांध दी जाती है तो उससे का ज़्यादा नुकसान होता है बजाय इसके खड़ी फसल के। तो कनोले का ज़्यादा नुकसान है। कनोला जो है ना वो हम लोगों ने काट के बांध दिया था, इसलिए उसको जो है ना उसके डबल उसके पे मेहनत हमें चाहिए। दोबारा उसको जो है ना उसके साथ जो है ना मेहनत हमें करनी पड़ेगी दोबारा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना बारिश जो है ना वो अगर अल्लाह रोक दे तो हम इंशाअल्लाह ताला इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान की बात आपने सुनी। इनका कहना था कि जो कनोले की फसल है पानी खड़े होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बारिशों से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस है। मुतासर इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। NDMA हुकूमतों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल वाज़े करें। बारिशों से नुकसानात के हवाले से NDMA को हिदायत भी दे दी हैं। बारिशों का पानी डैमों में जमा हो रहा है जो कि खुशाइंद है। बिजली की तरसील की इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें, तरसील का निज़ाम अच्छा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बिजली तरसील के निज़ाम की हालत बहुत बुरी है। बिजली चोरी रोकने के हवाले से हुकूमत पुरअज़्म है। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से पंजाब की कारकर्दगी हौसला अफजा है। दूसरे सूबे भी बिजली चोरी की रोकथाम में इक़दाम उठाएं। टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। रिव्यू है पावर डिवीजन का इंशाअल्लाह, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी फ्रूटफुल सेशन एंड प्रोडक्टिव सेशन। बारिशें भी हो रही हैं, मेरे ख्याल आपके डैम्स भी भरेंगे और आपको पन बिजली का भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन बारिशों का जो डाउन साइड है, मेरी आज चेयरमैन NDMA से बात हुई जो हालिया बारिशों में, तो उससे ख़ासी इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला जो चले गए इस दुनिया से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए। तो मैंने चेयरमैन NDMA को कहा है कि वो फौरी तौर पर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करें और मिलकर NDMA और PDMAs जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा है वहाँ पर इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाया जाए। कि बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है, और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। और उनके साथ आप मिलकर आप सूबों के साथ ये
सारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से आप निभाएंगे। माफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं, जो आप क्रूड ऑयल और जो ये है वो माफिया जो लाइक पैरासाइट जो इस मुल्क की जो दौलत को निचोड़ रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात में भारत मुलव्विस है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल करने में भी मुलव्विस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का शुबा है। इससे पहले भी 4 कत्ल में भारत मुलव्विस था। आमिर तांबा के कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। FIA साइबर विंग में बेहतरी के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जराइम पेशा अनासिर को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। निगरान हुकूमत ने अमन अमान के हवाले से काम नहीं किया। अमन अमान की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सक्खर में नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 3 से 4 माह में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। डाकू के पास जदीद असलहा है, पुलिस को भी इस तरह का असलहा फराहम किया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के बजाय 5-6 महीने पे चली गई और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नज़र नहीं आती। जैसे आज हमसे आप सवाल करते हैं और हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है और करना पड़ेगा, करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी तो बिल्कुल करेंगे, ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है उसको इंशाल्लाह 3-4 महीने के अंदर आपको ठीक करके देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंची हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान वज़ीर आला ने माल रोड का दौरा भी किया है। इसी पर हम बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 रईस अब्बासी से, जो कि इस वक्त माल रोड मरी पर ही मौजूद हैं। रईस, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर आई, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मार रोड का अचानक दौरा किया है। सख्त सिक्योरिटी में वो मार रोड पर पहुंची। शदीद बारिश थी, बारिश के बायस यहाँ पर वो ना रुक सकी और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी में पहुंची। वहाँ पर बच्चों से मुलाकात की, तालीम के हवाले से बच्चों से पूछताछ की गई, स्टाफ के हवाले से पूछताछ की गई और साथ साथ सख्त सर्दी में बच्चों से तालीमी मेयार के हवाले से और यहाँ पर मुश्किलात के हवाले से भी बात की गई। आधा घंटा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में वो रुकी। उसके बाद वहाँ से उनका काफिला निकला, मरहबा चौक में पहुंचा और मरहबा चौक से होते हुए वापस मार रोड पर पहुंची। मेन शराहों पर गड़े बने हुए थे और गड़ों की वजह से महकमे हाईवे के नाइली के हवाले से उन्होंने बर्मी का इजहार किया। साथ साथ निकासी आपके लिए बनाई गई नालियां और पुलियां बंद होने की वजह से सारा पानी मेन शराहों पर बिफर रहा था। इस हवाले से भी उन्होंने बर्मी का इजहार किया। यहाँ से होती हुई वो अपने वापस रिहायशगाह कश्मीर पॉइंट पहुंच चुकी है और उनका विजिट THQ अस्पताल मरी का भी था, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से अपना जो दौरा है उन्होंने मुख्तसर किया है और वापस वो अपनी रिहायशगाह मरी कश्मीर पॉइंट पर पहुंच गई है। जी, डाकुओं के पास भारी और जदीद असलहा मौजूद है। कच्चे और सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल पर लाहे अमल तैयार कर लिया है। कनकोट में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जराइम पेशा अफराद और डाकुओं से कहता हूँ कि वो सरेंडर करें। कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए सरदारों MPs की मीटिंग बुलाई है। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि कराची के अमन ओमान में निगरान हुकूमत में बिगाड़ आया, बिगाड़ ठीक होने में वक्त लगेगा। पुलिस के जवानों पर भरपूर यकीन है, जल्द नताइज नजर आएंगे। पहले IG साहब को रिक्वेस्ट की थी कि वो भी यहाँ पर आएँ और यहाँ के हालात देखें कि किस तरह स्ट्रेटेजी बनाएं, ताकि हम चाहते हैं कि सिंध में अमन व अमान हो। और उसी सिलसिले में आज सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की है IG साहब के साथ बैठ के और काफ़ी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं जो आगे लाया अमल बनाना है।
सब जानते हैं कराची में वारदातें कौन कर रहा है। सच बोलेंगे तो कहा जाएगा कि तासुब फैला रही हैं। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर फट पड़े, कहा कि जो वजीर कहते हैं कि अमन व अमान है उनको शर्म आनी चाहिए। पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है, इबादत गाहें भी महफूज नहीं, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये लूट मार को भी सियासी मसला बनाना चाहते हैं। नसरीन जलील बोली, हमने जनाजे उठाए हैं, हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये स्ट्रीट क्राइम का मसला कोई MKM का मसला नहीं है। इस शहर में रहने वाले हर जबान, हर मसलक, हर फिक़े, हर सियासी और लिसानी जितनी इकाइयाँ उन सब का मसला है। ये कोई MKM का मसला नहीं है। इसको जबरदस्ती एंगलिंग कर दी जाती है जी, इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस को शायद कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। ये न मजहब देख रहे हैं, न फिक़ा देख रहे हैं, न सियासी वाबस्तगी देख रहे हैं, ये सिर्फ लूट रहे हैं। और आप जो सूरत हाल 2024 में बन गई है, ये लूट रहे नहीं है, ये मार भी रहे हैं। ये लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं, ये शाहराहों पे मार रहे हैं। अब तो इबादत गाहें महफूज नहीं है। बैनुल अक़वामी रैकेट इसमें मुलव्विस है। कराची से मोबाइल छिनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से दुबई और दीगर ममालिक में जाता है। ये एक इंडस्ट्री का रुतबा इख्तियार कर गई है ये मोबाइल छीनना इस शहर कराची से। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं। एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस जंगल में रह रहे हैं, किस हुकूमत के ज़ेर निगरानी जिसका इंतज़ाम है।